or even for the floral stick what we use for chocolate making, that is also can be used. So this type of stick or ice cream sticks you can use. Okay, so now what we will do, we will I have cut this shape here. That is one shape I am going to do. Or if you want to make any design, you can make the pichkari, or you can make the pot full of color, you can do that also. And simple will be one simple very I will be showing you, where I am going to cut. You can cut the paper in any shape, like a cloud or a oval shape or a rectangle shape or a round shape, and splash lot of colors on that, and you can write the caption Happy Holi or Rang Barse, anything whatever you want. So one I am going to make that is very easy, and it's really very colorful, because Holi is a festival of colors. So let us make the prop very colorful. Okay, so simple cloud, I can draw in a cloud shape. Simple, I have drawn it, and I will cut it out. So I am using all my used old wedding cards, so you can also use them. These are all old wedding cards, and I'm just cutting it in the shape of a cloud, and this I'm going to make it very colorful. So that's why I have cut here. See here, simple, very simple, and I'm just cutting it in the shape of cloud. Done. So little bit, this one will take little more pointed. So any shape you can cut oval shape, you can cut rectangle shape, and color it and write beautiful caption related to the festival, for whichever festival you want to make. Okay, so that is there here. Now, so here we are, and I just cut this, and now put little Fevicol here. I'll just put it towards the table so it is easy for you to understand the project. So here is my one shape. This is the cloud shape I have cut, and this is the this one I'll trim it little more because it's very big in size. So little bit I'll the semicircle, you have to just take a semicircle. So yeah, and this is the semicircle what I am going to do. So these are all card here, and this is the cloud which I have done, where I am going to write captions. You can make even pichkari, it's very easy to do. So you take a rectangle shape here for the pichkari or the syringe, what we use for playing the holy colors. That is very easy to make. So just take a rectangle piece of paper. I have taken a rectangle piece of paper. You can simply draw it out, or if you are very good at cutting, so basically take a rectangle piece of paper, and then you can draw it with the scale and then cut. Freehand you might go cross, like I am going cross, and then cut here in the center, and then same here in the, bring them in the center from both the side to get the nozzle of the this one pichkari. And here what you will do, we have to here we will stick little bit another strip, so it will be like coming out of the syringe. The usually the from where we pull the syringe, that part is there. So you can place that part here like this, as if this is the thing which you pull out from the string, and one circle we can add here. So complete, it will look like a complete pichkari what we use in Holi. So I'm just simply freehand. If you are not very good at this, you can cut it out and you can place them and then cut on the drawing and then do it. So one more, two, and one small circle will come here for holding it. So that also oval, it should be in oval shape. That also I am cutting it out freehand. So this itself we will use in the same color. I can put some dark red color, the pichkari, and then I can write the wording on this on some other color. See here, here it is. Can you see? 3 parts we have put here. Thank you Dipti ji and everybody for joining. 1 minute. Okay, so we have here 3 parts. Can you see here?
So these are the three parts you have to attach one on top of the other and create your Pichkari. So let me attach them, and then we will slowly we'll make this one little more pointed, because it has to be little pointed from the top. I have made it now. See here. Let's place one after the other the parts. Second part, okay, exactly in the center, and the third part here, which will be on top of this. So here it is. Got it? So इस तरह से आप पिचकारी बना लीजिए, या तो आप पॉट बनाएंगे, होली के पॉट बना लीजिए विद कलर्स, या तो गुजिया बना लीजिए, जो भी थीम है होली का, होली में होली से रिलेटेड जो भी आपका पिक्चर आपके दिमाग में आए, मैंने बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, उसमें से कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये जो हमारा है इसको हम थोड़ा सूखने के लिए रखेंगे। ये सूख जाएगा हमारा, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पिचकारी बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट सेंटर में होना चाहिए, और ये भी जो है एग्जैक्टली इसके सेंटर में। ठीक है, तो 2 मिनट्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। और इसके बाद ये ऑलरेडी इतना कलरफुल लग रहा है, देखिए, अगर इसके ऊपर हम पेंट भी नहीं करें तब भी ये अच्छा लगेगा, लेकिन विथ 3D आउटलाइनर वी विल गिव आउटलाइन एंड विल राइट समथिंग, सो दिस इटसेल्फ विल लुक नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि इसकी जो अपनी जो हैंडमेड पेपर है जिसपे ये कार्ड बना हुआ है, वो इटसेल्फ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हम इस पे हम हो सकता है might be we won't put any color, we'll just take some 3D outliner and we'll outline the project, and we will try to give more 3D dimension to the project. Look here, this is still look very nice, so we'll keep this for drying. और ये जो है इस पे हम लोग को पेपर लगाना है, तो हम लोग पेपर इस पे लगा लेंगे। 1 मिनट। So we'll put some 1 minute. So let's put some glue here and fix the paper here and then cut it out. So इसकी कटिंग थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पेपर मेरे पास छोटा है, कोई बात नहीं है। हम इसको लगा के और फिर इसके शेप में काट लेंगे, तो वो वापस उस शेप में आ जाएगा। जितना आपका पेपर थोड़ा सा साइड से अगर नहीं है, तो हम लोग इसको काट के लगाने के बाद फिर इसको उसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि वो पूरे इसको कवर कर लेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सो ये रहा। तो अपने हिसाब से आप अपने साइज का जो भी आपको साइज चाहिए आप उसको कर लीजिए। सो डन, so this cloud is done. We'll paint it, color it, and then we'll write the caption here, whatever you want. So if you want to put your own color, you can put color on this any dark color. We can put a red, blue, green, yellow, whichever color look dark, we'll put, let it dry, and then we can do. If you want to put some light colors, then you should put some paper here and then color the paper. Okay, so 2 projects we have done, and one more. So one was this and one. Now let us finish these 2 projects. So what we will do, first we will color this one. As I told you, this one we want to make it very colorful. So इसको बहुत कलरफुल हमें बनाना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट को बहुत कलरफुल बनाना है, तो हम इस पे कलर डाल देंगे पहले। We'll put some colors here and then we will paint it. Okay. Or for CD, what you can do, you take the CD, put glue and put the paper, and then basically CD में आपका जो भी प्रॉप्स बनेगा वो राउंड होगा, और राउंड शेप में होगा। आप उसको कोई भी शेप में काटने, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेमी सर्कल कर सकते हैं या राउंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सीडी को आपको काटना पड़ेगा, और इसके ऊपर आप पेपर लगा लीजिए, या डायरेक्ट पेंट कर लीजिए, या इसके ऊपर एम्बॉसिंग पेस्ट लगा के फिर उसके ऊपर पेंट करिए, वो आपके ऊपर है। तो ये बेसिकली मैं इसको बहुत मल्टी कलर करना चाहती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज लॉट ऑफ कलर्स एंड आई एम गोइंग टू पेंट द बेस, एंड देन व्हेन द बेस विल ड्राई अप, देन आई विल राइट सब कैप्शन।
कैप्शंस आपका आप 3D आउटलाइनर से लिख सकते हो, पेंट से लिख सकते हो, और नहीं तो आप उससे भी लिख सकते हो, पेंट से, 3D आउटलाइनर से, या नहीं तो आप स्केच पेन से भी लिख सकते हो। लेकिन 3D आउटलाइनर और पेंट से लिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। सो लेट मी टेक ऑल द नाइस ब्राइट कलर्स फॉर द होली, लाइक रेड, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लू। तो ये सारे ब्राइट कलर्स मैं ले रही हूँ। और इसके बाद ये ब्लू है। सो बेसिकली आज के प्रोजेक्ट में आपका मटेरियल यही लगने वाला है, फेविकॉल और पेंट और 3D आउटलाइनर्स। तो ये 3 मटेरियल से आपका प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा। सो दीज आर द मटेरियल्स व्हाट वी नीड टुडे फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, लेट मी फर्स्ट पुट द लाइट कलर। मैंने लाइट कलर डाला, इसके बाद मैं ऑरेंज डालूंगी, पार्ट बाय पार्ट वी विल पुट द कलर। इसके बाद मैं पिंक डालूंगी, इसके बाद मैं ब्लू डालूंगी, रेड डालूंगी, इसके बाद मैं ब्लू डालूंगी, क्योंकि मैं ब्रश चेंज नहीं कर रही हूँ, वॉश भी नहीं कर रही हूँ, सो ब्लू डालूंगी। और इसके बाद फिर से पेंट ब्रश वॉश करके हम लोग सबको हल्का हल्का सब कलर को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो हल्का हल्का कलर्स को मिक्स करने की कोशिश करेंगे, बहुत हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। आप उसको हल्का हल्का करके मिक्स करिए। और इसके बाद अगर आपको लगे कि आपको कहीं पे येलो और देना है, कोई कलर और भी देना है, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हो। तो बेसिकली इसको बहुत कलरफुल बनाया है। और ये जब सूख जाएगा तो इसके ऊपर आपको जो कैप्शन लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका अगर बैकग्राउंड कलर ये है तो आपको 3D आउटलाइनर से अगर आप इस पे लिखोगे तो वो दिखाई दे। और इसके बाद इसको अटैच करना पड़ेगा, पीछे में होल्डर अटैच करना पड़ेगा ताकि आप उसको होल्ड कर सको। ठीक है। सो रेड अगर और देना है कहीं, तो ऐसे आप एक कलर के ऊपर दूसरा कलर दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली मिक्सिंग होगा उसमें। ठीक है। सो डन। सो ये आप इसको हमको सूखने के लिए रखना पड़ेगा। सो देख रहे हैं आप कितना कलरफुल है ये बहुत ही कलरफुल है। आपको इसको ऐसे ही सूखने के लिए रखना पड़ेगा। जब ये सूख जाएगा तभी इस पे हम लोग कैप्शन लिखेंगे। ओके, अभी जैसे ये वाला है आपका, ये जो हमारा है, तो हम इसको कोई भी डार्क कलर दे सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्राउन है, रेड है, रेड इस पे अच्छा लगेगा। अगर हम इस पे रेड देंगे तो रेड इस पे अच्छा लगेगा, क्योंकि रेड इसको कवर कर देगा। तो आप उसको कलर कर सकते हो, और नहीं तो आपको ऐसे छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हम लोग इसको कुछ पार्ट में कलर करेंगे, मैंने कलरफुल बनाएंगे, क्योंकि होली मीन्स कलर। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक रेड किया है, इसके बाद बीच में येलो ऑरेंज करूँगी, फिर थोड़ा येलो ऑरेंज करूँगी। सो वी विल पुट डिफरेंट कलर्स यार। ठीक है। तो इसके बाद ऑरेंज के बाद ब्लू, अगर चाहिए तो थोड़ा सा ब्लू कर सकते हैं हम लोग। तो वी विल मेक बैंड्स ऑफ कलर्स, क्योंकि अगर आप बैंड्स ऑफ कलर्स करेंगे, होली मने कलर, तो जितना कलरफुल आप बनाएंगे आपका प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा लगेगा। Since Holi is a festival of colors, and how colorful you will make your project, that much it will look nice. So like that I am adding band. If you can make a single color also, it's up to you, but I am adding bands of colors because I want to make the project very colorful. So that's why I am adding bands of colors. Okay. अभी फिर इस पे ऑरेंज डालेंगे हम थोड़ा सा, और ऊपर में वापस हम लोग रेड डालेंगे। ठीक है। तो स्लाइटली अभी आपको क्या करना है, जहां पे आप एक कलर से दूसरा कलर स्टूर कर रहे हो वहां पे स्लाइटली मिक्सिंग कर दीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मिक्सिंग भी हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का मिक्सिंग करना है आपको। ओके, सो डन। तो ये आपका कलरफुल पिचकारी रेडी हो गया है। अभी इसको भी आपको सूखने के लिए रखना है।
और जब तक ये सूख रहा है कल के प्रोजेक्ट का हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कल के प्रोजेक्ट में हम लोग कैसे बना सकते हैं, हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। तो कल के प्रोजेक्ट के लिए जो कि हमारा एक सर्विंग प्लेटर है, होली थीम बेसिंग सर्विंग प्लेटर। तो इस प्लेटर को बनाने के लिए आपको पेपर कप्स चाहिए। आप कोई भी पेपर कप्स यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास घर पे छोटे छोटे टब्स हो, इस टाइप के छोटे छोटे टब्स हो वो यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो छोटी छोटी मटकी हो आपके पास प्लास्टिक की और मड की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो क्लास में कल बनाएंगे वो पेपर कप से बेसिकली बनेगा। तो और नहीं तो आपके पास पेपर के ये होते हैं जैसे इस टाइप के रोल्स, इस टाइप के बॉक्सेस के, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर कप्स नहीं है तो इस टाइप के छोटे बॉक्सेस हो या बड़े बॉक्सेस हो, आप उसको काट के इतना हाइट का आप रख सकते हो। और we'll make a bucket and we'll make the holy pichkari or the syringe. So those who are having old syringe, you can use the old syringe because I will be teaching you the method for coloring and designing. So if you have old syringe at home which is to be thrown away, you can use that syringe, or you can create a syringe tomorrow which we are going to teach you in the class. So आप सिरिंज क्लास में भी बना सकते हैं इसी तरह के पेपर से। तो हम इसी तरह का पेपर यूज़ करेंगे, वेडिंग पेपर, और उससे हम सिरिंज बनाएंगे और हैंडमेड सिरिंज बनाएंगे। और उसके बाद आप उसको पेंट करोगे और डेकोरेट करोगे, और पेपर कप से आप हैंडमेड कलर की बकेट बनाएंगे और बाल्टी जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनाएंगे। और उसको दोनों को आपको एक प्लेट चाहिए, आप एक पेपर प्लेट को उसको अरेंज कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। और इसके बाद वो बाल्टी जो है अंदर का पेपर कप का जो आपका बाल्टी है, यू कैन यूज इट एज अ स्टोरेज। आप उसको ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स या स्नैक्स कुछ भी डाल के और उस प्लेटर को आप सर्व कर सकते हो। आपका होममेड प्लेटर आप सर्व कर सकते हो। उसमें फूड आइटम आपके होली पे जब आपके गेस्ट घर पे आए तो आप उसमें आप चॉकलेट्स हुआ या मिठाइयाँ हुई या स्नैक्स हुआ या कुछ भी आप उस पर डाल के सर्व कर सकते हो। तो आप चाहो तो उस पर 2 बकेट बना सकते हो, 2 बाल्टी बना सकते हो, 2 पिचकारी, और नहीं तो 1 बाल्टी और 1 पिचकारी बना सकते हो। तो दोनों बाल्टी या बकेट, पिचकारी या सिरिंज जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो सारा आपका होममेड और हैंडमेड रहेगा, तो जो स्क्रैच से बनेगा। ठीक है। तो आप उसको डेकोरेट करने के लिए आप लेस, कुंदन स्टोन और जड़ी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मिरर्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू विल बी नीडिंग फेविक्रिल, हॉबी आइडियाज पेंट प्लस योर फेविकॉन, and of course if you want to do any designing with the 3D outliner, if you are not having kundan stones and all, you can use the 3D outline. okay, so अभी यहाँ तक तो आपका हो गया है। अभी ये सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने कलर की कोटिंग बहुत ही आप देख रहे हो, थोड़ा सा अभी और सूखने को ये बाकी है। ये तो कलर की कोटिंग हम लोगों ने बहुत थोड़ी पतली पतली दी है ताकि ये कवर हो जाए। तो मैं थोड़ा सा ब्रश से इसको मिक्स करती हूँ तो ताकि वो जल्दी सूख जाए और हम इस पर 3D का काम कर सकें। इसके बाद मैं इसको स्टिक करके भी मुझे हमको बताना है इसको कैसे आपको स्टिक करना है ताकि वो होल्ड करने के लिए, प्रॉप्स होल्ड करने के लिए आपका वो कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ड्राई ब्रश मार रही हूँ ताकि मेरे कलर्स जो नहीं सूखे हैं वो थोड़ा सा सूख जाए, जल्दी जल्दी सूख जाए। तो ऑलमोस्ट अब सूखने की कगार पे है, ये सूख गया है आपका। ठीक है। और अभी जो ये वाला है इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे मर्ज कर रहे हैं ताकि वो आराम से सूख जाए। ओके। सो जहाँ जहाँ गीला गीला दिख रहा है थोड़ा उसको मैं सुखा ले रही हूँ। और हमें सैलो टेप चाहिए। मेरे पास तो ये जो है स्टिक्स, मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी होगा आप वो यूज़ करो। ठीक है। तो अभी हम इसको ये लगाएंगे, इस पर सेलो टेप चाहिए। तो पेंट की हमारी काम हो गई है, तो वील जस्ट रिमूव ऑल दिस बॉटल्स अवे एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट विद द 3D outliner. Since the colors are very bright behind, so it will be easy for us to write with the 3D outliner. Otherwise you can write, if you are making the color very light in the background, you can write with black sketch pen. So
और कैप्शंस जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, बुरा न मानो होली है, हैप्पी होली, रंग बरसे, या मैंने बहुत सारा शेयर किया है। आजकल तो बहुत सारी कैप्शंस, अच्छी अच्छी कैप्शंस मिलती है। मुझे गुजिया चाहिए, जो भांग पीने वाले हैं, टल्ली है, हैप्पी होली। तो बहुत सारे कैप्शंस हैं, आप कोई भी कैप्शन लिख सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और भी शेयर करूंगी ताकि आप उनमें से कोई भी कैप्शन लिख सकोगे। ठीक है, तो लेट्स टेक द 3D आउटलाइनर एंड आई हैव टेकन गोल्डन कलर। आप गोल्डन कलर, सिल्वर कलर कुछ भी ले सकते हो। तो अभी इसमें हम सिंपल लिखेंगे हैप्पी होली। तो सिंस ये ऐसे है, आप उसको अगर आप यहाँ पे स्टिक लगा रहे हो, if I am putting the stick like this, I will write the caption like this. So and if I am putting the stick here, then I will write the caption like, but I want to put the stick here like this for holding, so I'll write the caption like this. So happy होली। so basic सबसे बेस्ट है आपका हैप्पी होली। तो 3D आउटलाइनर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये इम्बॉसिंग इफेक्ट देगा आपके प्रोजेक्ट को। तो पेंट इतना इम्बॉसिंग इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन 3D आउटलाइनर बहुत ही इम्बॉसिंग इफेक्ट देता है। तो आप 3D आउटलाइनर से आपका काम भी इजी हो जाता है, आपको लेटरिंग आपकी बराबर होगी और आपको कन्वीनियंट होगा लिखने के लिए। तो जो भी आपको सुविधा हो आप उससे लिखिए। अगर आप पेंट से आपको सुविधा हो तो आप पेंट से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास स्टेंसिल्स है तो आप स्टेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमने लिख दिया हैप्पी होली। और उसको आप और थिक चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा और एक कोट डाल के उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने बराबर से यूनिफॉर्म से लिख लीजिए। और प्लस यहाँ पे हम एक ये दे रहे हैं नाउ। अभी बैकग्राउंड में आपको कुछ और काम करना है, जैसे ये आपका 3D आउटलाइनर है, आप इसके छोटे छोटे फ्लावर्स या डिजाइन ऐसे कुछ बना सकते हो ताकि वो अच्छा लगे दिखने में। बैकग्राउंड पे आप छोटे छोटे ऐसे just press and pull your 3D outliner, it will look like a flower, स्टार और फ्लावर कुछ भी हो, या रेडीमेड आपके पास स्टार फ्लावर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, स्टिकर्स फ्लावर, आप उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, और so let me finish it up and then it will dry up and then I'm going to put the stick and hold and show it to all of you. In this I have written happy Holi, and the other one I'm going to write Rang Barse या बुरा न मानो होली है। You can write that caption also in Hindi, that's very famous caption, बुरा न मानो होली है। Okay, done. So simple design, you can put star, dots, whatever, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे। नाउ मैंने लिख दिया है और अभी मैं इस पे स्टिक नहीं लगा पाऊंगी, थोड़ी देर बाद स्टिक लगाऊंगी। इसको सूखने के लिए मैं रख दूंगी, थोड़ा सा सूख जाएगा तब इस पे मैं होल्डर लगाऊंगी। अभी इसमें रंग बरसे लिखना चाहती हूँ, रंग बरसे, और नहीं तो बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, डोंट माइंड इट इज होली। बुरा सो कैप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, तमिल में, गुजराती में, जो लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। 3D आउटलाइनर से आप अपनी अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हो। बुरा ना मानो
Okay. होली है. So I wrote the caption in Hindi. We usually say, but I have written in the English letter. बुरा न मानो, होली है. Okay. So these are the small and easy captions related to any festival. You can prepare your own prop card. So I just wrote बुरा न मानो होली है, and I'm just going to put some dots or stars. ये cloud है, तो cloud में हम some stars, we'll make some stars here. Usually the clouds will have some stars here, so I'm going to make some stars here. So these are few a very easy way of making your captions, and we have done used it. And let me one more time I'll put this letter so that it looks more bold. तो बेहतर ये है आप इसमें आराम से लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगा आपका. So one more time I'm writing. I want to make it little more embossed. So on top of the 3D, one more time you can give, and you can make it little more embossed. So from far away you can see the letters. Okay. So done. So that's all, and we will just put the stick. So you need a broad sellotape here. A broad sellotape or a masking tape is better to stick the put the stick. So I'll be getting a broad sellotape or a masking tape. Let me see where it is, and we'll just stick it up. So either a broad sellotape or a masking tape you can use. Both I am showing you. Whichever you have, you can put. So this is a broad sellotape here, and this is a masking tape here. So whichever you want, you can use. Okay. But with the broader the tape, the grip of the thing will be more. So for that reason, we are, see here. Now, since my thing is not yet dried, I have to be very carefully. I'll be putting it. So I don't want the thing to get damaged. But no issues. I need to show you people, so that's why I'm doing it here. So I am putting the stick here like this in the center. Exactly in the center, you have to place the stick here, and then slowly tape it nicely. तो आप अच्छी तरह से जब सूख जाएगा तभी टेप करिएगा. जल्दबाजी में टेप मत करिएगा, और सूखने के बाद ही टेप करिएगा ताकि आपका चीज डैमेज नहीं हो. लुक हियर. ओके. So your holy prop is ready. Like this, you have to stick the tape for you. 1 minute. I'll just lift it more up. हाँ, ये देखिए. एग्जैक्टली सेंटर में आपको पीछे सेलो टेप से आपका जो वुडन स्टिक है उसको लगाना है, और आपका होली का प्रॉप रेडी है. So this is happy Holi. See the color, how beautiful it is looking. I didn't stick any paper. Directly I painted it on this paper. I just directly painted it on this hard paper, and it is so stiff and nice. Can you see the this wedding card behind? So it is so stiff and nice. Okay. So I am very gently holding it. I am not after it dries up, I'll put the tape more nicely. So just gently I want to show you how you people have to put the tape. So for that reason I am, देखिए आप, पहले इस पे लगा लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली हम वहाँ पे ले जाएंगे और सेंटर में रखेंगे उसको, और ये ऐसे लगा लेंगे. डन. So both the props are ready. You can have a look. One is Bura Na Mano Holi hai, and the other one is here
बुरा न मानो होली है,